Okay, so third concept in linear equation only is pair of two linear equations in two variable. So linear equation with one variable we have solved, linear equation two variable we have solved, but with one equation. एक equation था हमारे पास और उसमें ही हमने x और y के values calculate करके देखे और उन values को graphically हमने how to plot them in a graph, how to draw a linear line that we have studied. Now, if there are more than one equations and with the two variables, so that we can see how to go with it. So to calculate these these types of cases, we have three methods: substitution method, elimination method, and graphical method. Any of the method, तीनों में से any of the method you are going to use, you are going to get same kinds of answers. और whatever you are going to calculate, मतलब for example substitution से मेरे को जो answer मिलेगा, elimination से मुझे जो answer मिलेगा, graphical से मुझे जो answer मिलेगा, all the three are going to be same. Okay, so any method you can use, you will get the same answer. So and if it is written in the sum कि आपको स्पेसिफिकली यही मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, तो आपको वही करना रहेगा. बट इफ इट इज नॉट मेंशन, यू कैन गो विद एनी ऑफ द मेथड. Okay, so one sum I'm going to take, and that particular sum means where there will be pair of two linear equation. That particular two equation I'm going to calculate with substitution, elimination, and graphical. All the three methods with one sum I'm going to solve, so that it will be, you can relate the sum, and it is going to be easy. So first we are going to very simple. I'll just first make you understand substitution में क्या करने वाले हैं हम क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पे x एंड y रहेगा और दो इक्वेशन रहेंगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में x एंड y, दोनों में दो दो वेरिएबल रहेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू, किसी एक वेरिएबल का ना सब्स्टिट्यूट लेके उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, जब दो वेरिएबल की इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमें बहुत इजी रहेगा उसको कैलकुलेट करना. एलिमिनेशन मेथड में एज द नेम इज एलिमिनेट, हम एक इक्वेशन को दूसरी में से एलिमिनेट करेंगे, सबट्रैक्ट या एडिशन वाला काम कुछ करेंगे, देखेंगे कैसे होगा. मेनली एलिमिनेशन एक इक्वेशन को दूसरी में से करेंगे सो दैट विल गेट टू अ काइंड ऑफ थोड़ा छोटा हमारे पास इक्वेशन बन जाए या इजी इक्वेशन हमारे सामने आ जाए. ग्राफिकल में आई शोड यू व्हाट टू डू. आपको ग्राफिकल में क्या करना रहता है, पहले तो आपको प्लॉट्स, जो आपको पॉइंट्स चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, फर्स्ट यू नीड दोज पॉइंट्स. वो आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, वी नो दैट. सो दैट वे यू कैन जस्ट कैलकुलेट ईच एंड एवरी इक्वेशंस वैल्यूज and उनको ड्रॉ कीजिए ग्राफ पे and you will get the answer. So the names are itself the name is itself clearing you that what actually you have to do. So first we are going to go with substitution method. So this is the sum where there are two equation you can see, and ये आपको नहीं लिखा रहेगा कि equation 1 है या equation 2 है या equation 3 है. For better clarity for yourself and for your instructor, for your examiner, you should write this कि ये equation 1 है मेरे लिए और equation 2 है, because आप बाद में ना इनके साथ काम करने वाले हो, तो आपको पता रहे कि आप equation 1 में वो चीज कर रहे हो, equation 2 में कर रहे हो, अपने आप में ही उलट पुलट हो जाए सब कुछ कि किस equation में किया था. So for better clarity, what you can do, you can just write it down for neat and clean paper and for understanding of yourself as well. So equation 1 है x plus y equal to 10 and equation 2 x minus y equal to 2. Substitution method, as I said, what you have to do, आपको substitute choose जो है निकालना पड़ेगा. So substitute के लिए what I am going to do, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए, किसी को भी चूज करके उसका जो है सब्स्टिट्यूट बना सकते हो, यू विल गेट द आंसर. सो मैं यहाँ पे ना इक्वेशन 2 ले रही हूँ और कोशिश कीजिए जो आपको थोड़ी इजी इक्वेशन लग रही है उस इक्वेशन को लीजिए. मुझे अभी ये इक्वेशन इजी लग रही है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2. तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, या तो मैं y की वैल्यू को
y की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट कर लेती हूँ या x की कर लेती हूँ और उसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगी. सो एनीथिंग यू कैन डू, y के लिए भी कर सकते हो, x के लिए भी कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे x को करने वाली हूँ. सो इफ यू कैन सी x जो है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इफ यू कैन सी x का वैल्यू अगर मुझे इस इक्वेशन से ही चाहिए, तो यू कैन सी व्हाट आई कैन मेक इट x. y को अगर मैं ट्रांसपोज कर लूं, इट इज गोइंग टू बी y, 2 plus y. So this is, if you can see now, what I made it is my x value. मैंने x को ना 2 plus y बना दिया इक्वेशन 2 से इंफॉर्मेशन लेके. So this what I have done. So now second thing, आपको क्या करना है, exactly what substitution, जो इस मेथड का नाम है. अब मैं x, जो भी ये इक्वेशन है उसमें x को ना इस पर्टिकुलर वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, x की जगह पे उसका सब्स्टिट्यूशन डाल दूंगी. x का सब्स्टिट्यूशन मुझे क्या मिल गया, 2 plus y. सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एनी इक्वेशन यू कैन टेक. मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ. सो इक्वेशन 1 इज दिस. सो नाउ y, x का सब्स्टिट्यूशन आई एम हैविंग. सो आई एम राइटिंग डाउन दैट सब्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दैट इज 2 plus y. ये मेरा x का सब्स्टिट्यूशन है और प्लस y ऑलरेडी था वहां पे, इक्वल टू 10. ठीक है. सो नाउ आई कैन जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट. 2 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 2 y प्लस y क्या हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 10. बाकी का सॉल्व इज गोइंग टू बी इजी फॉर अस नाउ. 2y इक्वल टू 10 minus 2. So this is going to be y equal to 8 over 2. तो ये आपका कितना आ जाना चाहिए, 4. तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया है 4. y is 4. So this is one value we have calculated y का. So which is now we have the answer of y. Now x का वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमें इसमें क्या करेगा, x और y दोनों कैलकुलेट करने होते हैं. सो मैं x कैलकुलेट कर लेती हूँ. सो इफ यू कैन सी, या तो आप इसी को डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए जो आपने अपना सब्स्टिट्यूट बना रखा था, या किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर. सो x was this. So now I have the y information, that is 4. So my x is going to be 6. Very easy. ठीक है जी. तो ऐसे आपका y का x का वैल्यू आ गया. So x is 6 and y is 4. So ये मेरे answers we have calculated, x 6 and y 4. So this is how to calculate when there are two equations with two variables with substitution method. ये substitution method है, मैंने क्या किया है, substitution का use किया. So same equation को, I think it should be very clear because very simple equations I have taken. So if anyone wants me to take some difficult equations to calculate, please comment, I'll go with that as well. And if you have any particular kind of sum, you can just let me know, I'll go with that as well. So now the next method with the same equation we are going to use, that is elimination method. So as I said, what we are going to do in elimination method, एक equation को दूसरी में से deduct कर देंगे. So चाहे आप equation 1 को equation 2 में से कर दीजिए, चाहे equation 2 को equation 1 में से कर दीजिए, you will not going to get any kind of difference in the answer. So this is equation 1, this is equation 2, and by chance this equation, as I said, these are the simplest or we can say simpler equations. So यहाँ पे x के आगे भी कोई coefficient नहीं है, y के आगे भी कोई coefficient नहीं है, तो it is very easy for us to eliminate. But अगर by chance यहाँ पे 2 होता, ठीक है, या यहाँ पे भी कोई वैल्यू होती, 3 होती, तो
इन दैट केस हमें पहले इसको उसके इक्वल बनाना पड़ता, देन वी डू द एलिमिनेशन मेथड। वो भी कर लेंगे, मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट इक्वेशंस रहेगा, एंड इन दैट केस वी हैव टू एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट। ओके, तो अभी थोड़ा सिंपल से, एटलीस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो विद इट। सो दीज आर द इक्वेशन, व्हाट टू गो विद इट नाउ इज एलिमिनेशन करनी है, एलिमिनेट करना है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपको लिखना रहेगा आप कौन सी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन में से माइनस कर रहे हो। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इक्वेशन 2, मैं लिख लेती हूँ, एलिमिनेट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो आई एम डूइंग, एलिमिनेशन कर रही हूँ मैं इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 में से। एलिमिनेशन का मतलब है मैं डिडक्शन करने वाली हूँ, तो मैं x में से x को माइनस करूंगी, y में से y को माइनस करूंगी, 10 में से 2 को माइनस करूंगी। सो बाय डिफॉल्ट हियर द साइन शुड बी, अगर मैं साइन की बात करूं, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस करूंगी इन दोनों को, फिर यहाँ पे भी माइनस करूंगी, ठीक है। सो वन वे इज दिस टू राइट डाउन माइनस, एंड द अदर वे इज आप यहीं पे साइन चेंज कर दीजिए, बिकॉज माइनस करना है इनको। तो इफ यू कैन सी यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, बिकॉज आई एम डूइंग what I am going to do, x में से x को माइनस करना है। so if I have to minus, तो माइनस x हो गया यहाँ पे x, y में से y को माइनस करना है, बट ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली 10 में से 2 को माइनस करना है, प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो दीज आर गोइंग टू बी द न्यू इक्वेशन फॉर व्हेन वी आर गोइंग टू एलिमिनेट। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करूं, x और x प्लस का है, x माइनस का है, तो दीज आर गोइंग टू बी कैंसल आउट, तो एक तरीके से जीरो होने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी नथिंग फॉर x, बट येस y प्लस y है, दिस इज गोइंग टू बी 2y एंड दिस इज गोइंग टू बी 8। 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, तो y अगर आप कैलकुलेट करें, दिस इज गोइंग टू बी 4, y आपका आ गया 4। एंड सिमिलरली द सेम मेथड इन एनी ऑफ द इक्वेशन, what you can do, you can put y's value, any of the equation you can put y's value, and y value is 4, and you can get the answer for x, that is going to be 10 minus 4, that is going to be x your 6, ठीक है। So again we got the same answer, if you can see पिछले में हमारा क्या आया था, x6 and y4, similarly here x6 and y4। so this is the second method to go with it, that is elimination method। आपको eliminate करना है, and this is a kind of popular and easiest method as compared to substitution। वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, but the if it is mentioned in the exam कि आपको calculate उसी से करना है, then you have to go with that only। The third method is graphical method, which is also known as hit and trial method। and this method, again I have taken the same equations, if you can see this was our equation number 1, वही वाला equation यहाँ पे लिया है, equation number 1, and this is our equation number 2, same equations we have taken over here as well। so now how to go with graphical method, ये चीज हम कर चुके हैं, ये पर्टिकुलर टेबल कैसे बनना है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने ये मेथड हमने किया था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इन दैट मींस सेकंड वीडियो जो आपको लीनियर इक्वेशन का मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वेयर द वीडियो नेम इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू गो विद इट। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए फॉर कम हियर। सो इस इक्वेशन को मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें हिट एंड ट्राई कर करके देखते हैं कि किससे हमारा जो है सही बनेगा सिस्टम और आंसर ठीक आएगा। सो इक्वेशन 1 की वैल्यूज ये हैं, सेम कलर ब्लू, एंड इक्वेशन 2 के जो मैंने हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज निकाले हैं, दीज आर। नाउ ग्राफ में कैसे पॉइंट करना है, हमें ड्रॉ करना है, वो भी मैंने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में बता रखा है। सो द सेम वे यू हैव टू point out both the dots, and you can see, because
देखिए जो हमने पिछली वीडियो किया था ना उसमें सिर्फ एक इक्वेशन था, तो आपको एक ही लाइन हमने ड्रॉ किया था। इस वाले वीडियोस में जहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया था, वहां पे सिर्फ एक इक्वेशन था, तो आपका एक लाइन ड्रॉ हुआ था। यहाँ पे आपके दो इक्वेशन है तो दो लाइन ड्रॉ होंगे, तीन इक्वेशन होते तो तीन लाइन ड्रॉ होते। तो यहाँ पे टू लाइन्स वी हैव ड्रॉन विद पॉइंटिंग विद ड्रॉइंग ऑल द 3 पॉइंट्स एंड मेंशनिंग। ये हमारी ए बी जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन है, और ये सी डी जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन है। सो नाउ व्हाट इज द आंसर? अगर आपको रिमेंबर हो, हमारा आंसर अभी तक जो आ रहा था वो आ रहा था x6 एंड y4। सो हाउ टू गेट आंसर फ्रॉम दिस ग्राफिकल मेथड? जहां पे भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, यू हैव टू सी वेयर दोज आर इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ इफ यू कैन सी दिस इज द इंटरसेक्ट पॉइंट एंड वेयर x is 6 and y is 4. So this is the answer, x6 और y4 है। ओके डन। सो दिस इज द वे हाउ टू गो विद ग्राफिकल। ग्राफिकल में थोड़ा ज्यादा लंबा काम हो जाएगा, दैट यू हैव टू फर्स्ट हिट एंड ट्रायल से आपको ये वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्ट पॉइंट फॉर टू कैलकुलेट दैट, टू सी दैट इंटरसेक्ट पॉइंट। आपको बहुत नीट एंड क्लीन काम करना रहेगा। अगर आपने बहुत गंद फैलाया हुआ है अपने ग्राफ में तो आपको खुद को ही नहीं मिलेगा कहाँ पे क्या करा है। सो दिस इज द केस, यू कैन गो विद। मैंने ग्राफ में नहीं बनाया, कॉपी पे बना रखा है, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर दैट एक्चुअली व्हाट आई हैव डन। Okay ji, so done with this linear equation with the two variables also, with the two equations, and with all the three methods. In the next video I'll try to come with some a little bit advanced sum, because here if you can see x plus y x plus x minus y था, तो कुछ complicated equations के साथ I'll try to solve, so that those people, those who want to try some hard kind of sums, those will be able to go with that. But आप इतना भी समझ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, you can go with it by your own. This is one sum on your screen, if you can see. अगर आपको solve करना रहेगा, you can solve it by your own. Equation 1 and equation 2 is given over here. X and Y with all the three methods you can solve. You can solve substitution, elimination, and the last one graphical, and you will be good to go. Okay, done here then. So we'll going to end this meeting. Thank you.